Ma'am, all the characteristics that differentiate between living and non-living things like growth, reproduction, and metabolism that can be seen only in living things, organisms, that differentiate between mainly living and non-living. Very good, Nidhi. Very good. Well tried, bete. Yes, Sukman, you have also raised your hand. Just tell me. Ma'am, I think so. All the things we can call living, which can breathe, whereas non-living things do not actually breathe, and also living things are known as biotic, and non-living things are known as abiotic. Very good. Very good. Acha, ab, some points that Nidhi has shared that they show growth, and then Sukman said they show breathing, respiration, even metabolism, reproduction. These are the points that have been shared by all of you. Tanveer, welcome to the class. Tanveer. Okay, we have just now started with this topic. Tanveer, am I audible? And please be quick in responding because I don't want to waste anyone's time. Okay, got it. Good afternoon, bete. Just be quick in responding, okay? Everyone, it's with, okay, no worries, Tanveer, I got it. Just be quick in responding. So, hum pad rahe hain simple sa chapter living and non-living. So, everybody knows they show growth. But, my dear friends, growth means increase in irreversible, uh, irreversible increase in size, shape of organism. Irreversible. What is growth? ग्रोथ में क्या होता है, जैसे एक बॉडी इतना साइज था, बॉडी का साइज ये था, अब थोड़ी देर बाद आप देखोगे इट इज इंक्रीज इन साइज, इट इज इंक्रीज इन शेप, इट इज इधर इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स. यहाँ 3 सेल्स थे, यहाँ पे ज्यादा हो गए. दिस इज कॉल्ड ग्रोथ. क्या ये आप सिर्फ सुनोगे? एवरीवन, इट्स रूल फॉर दिस क्लास, यू जस्ट हैव टू लिसन. जब आप लोग समझोगे, अपने आप लिखोगे, तो इट इज बेटर टू लिसन फर्स्ट एंड देन आई विल मेक यू राइट डाउन एवरीथिंग. तो ग्रोथ इज व्हाट? Size, shape and number of cells. But my dear friends, have you seen increase in size of mountains? Say yes or no. Does mountain show in no? How many of you say yes? Raise your hand. No, ma'am. No. How many of No, you say ma'am. no? No, everyone is saying no. Nidhi says yes. बेटे, अगर हम बात करें माउंटेन्स के बारे में, तो yes, they increase in size. How they are increasing in size? If suppose सुखमन जो है अपहिल्स घूमने के लिए गई है सुखमन, एंड शी हैज सीन दैट, सुखमन ने देखा कि यहाँ पे अभी जब वो गर्मियों में गई थी समर वेकेशन में, तो शी हैज सीन यहाँ पे पेड़ थे. अब विंटर्स में गई तो देयर वाज अ लेयर ऑफ स्नो ऑन इट. तो will you see the change in size in these mountains? Will be yes, will there be any kind of change in these mountains? Yes or no? Yes, ma'am. Yes. So that means non-living things also shows growth. So Nidhi, can you tell me, growth is a feature of living or not? We can say that is not the defining property. Yes, it is not the defining feature, but it is shown by living organisms. Non-living organisms, they also show growth, and I have given you this exception. For example, mountains, and there are certain things. अब आप कई बार देखते हो बुक है, बुक आपने रखी हुई पड़ी पड़ी वो फूल गई, पानी पड़ गया, या उसमें मॉइस्चर से वो इंक्रीज हो गई साइज में. That is also showing growth, but it is not living thing. So I think I have made clear with yes. Ma'am, the growth you are talking about, ma'am, about non-living things, ma'am, but वो growth वो उनकी खुद की नहीं है, ma'am. It is because of the outer factors. हाँ, outer factors say you're right, but बेटे देखो, what is growth? Growth is increase in size, is it? Increase in size. अब किसी चीज का साइज ग्रो हुआ है, आपकी बॉडी में कोई चीज इंक्रीज हुई है, सपोज देयर इज अ मोल. मोल मतलब आपके कोई तिल है, उसका साइज बढ़ गया, यू आर सेइंग दैट देयर इज इंक्रीज इन साइज. गॉट इट? Yes, Again, ma'am. in mountains also you'll see there is change, increase in size. You cannot go and remove that snow and say कि नहीं वही हो गया वापस, ऐसे नहीं कर सकते आप, है ना? तो growth is not the defining feature. Got it everyone? Living और नॉन लिविंग के बीच में हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं. तो फर्स्ट पॉइंट इज ग्रोथ. सेकेंड पॉइंट इज मेटाबॉलिज्म. सुनते जाना है आपने, क्योंकि इसी पे सबसे पहला नीट का क्वेश्चन आता है. हम सब डिस्कस करेंगे एंड आई विल मेक यू राइट डाउन आल्सो.
तो मेटाबॉलिज्म में मतलब क्या होता है? इट इज सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस व्हिच आर अकरिंग विद इन योर बॉडी. मतलब हमारी बॉडी में खाना बनता है तो उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म. खाना ब्रेक डाउन होता है उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के सम को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म. व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? सम टोटल ऑफ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. जिसको नहीं समझ आया वो ध्यान से सुनना. सौम्या देखो बेटे, एनाबॉलिज्म इज फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेस. कैटाबॉलिज्म इज ब्रेकडाउन ऑफ फूड. तो कहीं पे आपकी बॉडी में कुछ बन रहा है, प्रोटीन्स, आपके बाल बन रहे हैं, आपके नेल्स बन रहे हैं, आपके हेयर बन रहे हैं. आपने देखा होगा आपका बाल टूटता है दोबारा बनता जा रहा है. देयर आर सम थिंग्स विद इन योर बॉडी विच आर कंटिन्यूअसली ग्रोइंग, लाइक योर हेयर, like your nails, like your skin is also growing. कहीं पे स्किन में कट लगता है वो अपने आप ग्रो हो जाती है. दे आर शोइंग एनाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म, आपने खाना खाया वो टूट जाता है, प्रोटीन ब्रेक्स डाउन इनटू अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज. तो ये दोनों चीजें जो हो रही हैं दैट इज मेटाबॉलिज्म. तो this metabolism is only shown by living organism. That is why it is known as defining property. Defining का मतलब ये होता है जो डिफाइन डेफिनेशन में जो किसी और कोई और नहीं करता और सिर्फ ये स्पेसिफिक फीचर है. आई एम टॉकिंग अबाउट लिविंग वर्ल्ड, लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे पहली डिफाइनिंग प्रॉपर्टी आ गई, दैट इज मेटाबॉलिज्म. इफ आई एम क्लियर टू एवरीवन, जस्ट रेज योर हैंड and be quick. Okay, Kashish, Sukman, Soumya, Kiran. Be quick. Okay, Fanisha, Navreet, Aditya. Yes. Himanshi, very good. Very good, everyone. Anvi, Dipanshu, I'm waiting, bete. Tanveer, I'm waiting. Nidhi, I'm waiting. Yes, ma'am. Sorry, ma'am. Can you repeat? Bete, is this clear to you, Nidhi, till Yes, here? ma'am. Okay, okay, then just raise your hand if it is clear. Ma'am, this is clear to me, but I am not seeing any option of raising my hand. So, I can. Sorry, you're not audible, Tanveer? Ma'am, it is all clear to me, but I cannot see any option that helps me to raise my hand in here. Okay, okay, it is clear to you. But you can just write down then. Okay, ma'am. हाँ बेटे, वहां देखो आपके रेज ऑप्शन, रेज हैंड के ऑप्शन, आई थिंक आपके नाम के पास नीचे गो टू द पार्टिसिपेंट्स, आई गेस वहां पे होगा Yes, ma'am, ऑप्शन. I've used that feature multiple times, but it is not appearing right now. ओके, नो वरीज तन्वीर, नो वरीज. सो आई गेस सभी को ये क्लियर है. देन स्टार्ट विद द राइटिंग पार्ट. राइट डाउन चैप्टर्स नेम, लिविंग वर्ल्ड. Write down the heading. What is living? What is living? Anything which grows, reproduce, or respond to stimuli. What is living? Anything which grows, reproduce, and respond to stimuli. Anything which grows, reproduce, and respond to stimuli. जो आपने first feature, you can see it on your screen. Please write down first point, growth. Okay. First point is growth. Growth में लिखो permanent and irreversible. Okay. Okay, परिचित. बच्चे आपने लिखा permanent, irreversible, increase in size. Permanent, irreversible, increase in size, mass,
or number of cells. Permanent, increase. This is the sign for increase. ऊपर up sign है और SC, increase in size, mass and number of cells. Okay, Parikshit, welcome to the class. But mute yourself. Okay, Parikshit, rename yourself, bete. Ma'am, my name Rename is yourself. Sorry, your name is Parikshit Puri. Parikshit, right? Parikshit Puri, yes, got it, bete. Bete, you rename yourself. Okay, I'll do that. Parikshit, welcome to the class, Rajay. We have started with new chapter, that is living world. And living world में अभी हम पढ़ रहे थे living और non living के बीच में differences. तो सबसे पहला जो point था, that is growth. Growth की definition. Start with the writing part. Parikshit, please be quick. Start with the writing part. Okay, ma'am. Okay. Start with the writing part. Yes, लिखो. Growth. सबसे पहला point लिखो. Growth. ग्रोथ की हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे. इट इज इरिवर्सिबल, परमानेंट. ग्रोथ को दोबारा नहीं कर सकते, डी ग्रोथ कभी भी नहीं होता. इरिवर्सिबल, परमानेंट. इंक्रीज इन. मैम फिर से दिखा. You're not audible. Parikshit, please write down whatever you want to say. Write down. Irreversible, permanent, increase in size, mass, or number of cells. Yes, Aditya, is this a defining feature or a non-defining feature? Aditya? Yes, ma'am. Yes, is this a defining feature or non-defining? बच्चे क्या ग्रोथ कोई और भी शो करता है नॉन लिविंग में? No, ma'am. ओके आदित्य बेटे, हमने पढ़ा था एक्सेप्शन इज, नॉन लिविंग में एक्सेप्शन है जैसे माउंटेन्स, दे शो ग्रोथ. ओके, Yes, तो ma'am. माउंटेन्स दे, यस बेटे. नहीं समझ आया दोबारा देखो. आई एम जस्ट क्विकली रिवाइजिंग विद एवरीवन. म्यूट योरसेल्फ. बेटे हमने अभी शुरू ही किया टॉपिक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. लिविंग में बात की गई तो सबसे पहले मुझे एक स्टूडेंट ने आंसर किया था, दे शो ग्रोथ. मतलब अगर कोई चीज बड़ी हो रही है साइज में, दैट मींस इट इज लिविंग. तो ग्रोथ को बोला गया इट इज द फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. बट माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको पता है माउंटेन्स दे ऑल्सो शो ग्रोथ, दे ऑल्सो इंक्रीज इन साइज. जैसे अगर माउंटेन है, आज आप गए हो गर्मियों में तो माउंटेन का साइज डिक्रीज था, बर्फ पड़ गई तो उसका साइज डबल हो गया, उसके ऊपर लेयर्स आ गई आइस की. That means they have increase in size, because according to the definition you can see it is the increase in size, mass or number of cells. तो अगर ये साइज की बात कर रहे हैं तो yes they have shown growth. बट क्या ये लिविंग है माउंटेन? से yes or no anyone? क्या ये लिविंग है? No, ma'am. No, it is No, no. ma'am. Yes, no, it yes got it. It is non living. Yeah. तो इस yes इसीलिए बोला गया कि ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर. तो आपने ग्रोथ की डेफिनेशन लिखी सबने, परमानेंट, इरिवर्सिबल, इंक्रीज इन साइज, मास एंड नंबर ऑफ सेल. नेक्स्ट में आप नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे. हम कोई भी आंसर लिखेंगे या कोई भी चीज आप लिखोगे उसको पॉइंट्स में लिखोगे. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नॉन डिफाइनिंग फीचर. नॉन डिफाइनिंग फीचर.
नेक्स्ट पॉइंट में लिखो माउंटेन शो ग्रोथ फ्रॉम आउटर साइड्स. Mountain show growth from outer side. Mountain show growth from outer side. सेकेंड आप डेफिनेशन लिख रहे हो, सेकेंड डेफिनेशन लिखो मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन अगर आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन में, सम टोटल ऑफ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. It is defined as sum total of anabolism and catabolism. Yes, Navreet, can you tell me what is anabolism and catabolism? Anabolism is the process of formation of substances, whereas catabolism is the breakdown of food. Very good, breakdown of substances. Shabash. Anabolism is formation, catabolism is breakdown. और खाना बनना या टूटना दोनों प्रोसेसेस को मिला के हमने नाम दिया मेटाबॉलिज्म. इसी के एक और डेफिनेशन आती है, क्योंकि अब छोटी छोटी चीजें जो आप लोगों को पढ़नी है. इसी में नेक्स्ट पॉइंट पे लिखो all reactions occurring in a cell or organism. All reactions occurring in a cell or organisms. All reactions occurring in a cell or organism. And my dear friends, I have already told you it is the defining property. Defining property लिख के स्टार लगा के अंडरलाइन जरूर करना, क्योंकि अभी फर्स्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है. मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पॉइंट. नेक्स्ट हेडिंग लिखो रिप्रोडक्शन. You all know what is reproduction? Re का मतलब होता है दोबारा, प्रोड्यूस करना मतलब फॉर्म करना. So reproduction is formation of organisms. Formation of organisms. उसको हम बोलते हैं reproduction. And this is again sometimes we say this is a feature of living organism. अब अगर हम reproduction की बात करें, you'll study this in detail in +2. But I'm telling you in simple term कि कल को अगर मेरी डेथ होती है तो मेरे को रिप्रेजेंट करने के लिए आगे मेरी जनरेशन है. My son will be representing, or my son or my daughter will be representing by species. तो मेरे मरने के बाद if there is a couple, male and female, तो they produce one organism. तो उनकी डेथ के बाद जो है, उनके मरने के बाद जो है species continued रहेगी. तो what is reproduction? Formation of organisms. Why we form organism? In order for the continuity of species, to maintain continuity of species. अब reproduction कहते हैं ये feature है कि नहीं है? Anyone? क्या reproduction defining feature है या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, yes. Everybody is saying yes. Yes. Is this? Yes, ma'am. Okay. So everyone of you is saying that it is the defining feature. But अगर हम बात करें, अगर आप लोगों को पता है human beings में there are certain people which we say as eunuchs, या जिनको आप gay बोलते हो, eunuchs. EUNUCH, eunuchs कहते हो, gay कहते हो. In fact, in case of horse और donkey का दोनों का जो क्रॉस ब्रीडिंग के बाद जो प्रोड्यूस होता है म्यूल, they both are sterile. Can they reproduce? Can these organisms reproduce? No. बच्चे, ये दो ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. तो इसका मतलब
reproduction is not a defining feature of all the organism. There are certain humans, I'm repeating, which are infertile or sterile. आपने देखा होगा यूनिक्स एक कम्युनिटी है, गे कम्युनिटी, यूनिक्स कम्युनिटी, वहां पे दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, दे कैन नॉट प्रोड्यूस यंग वंस. तो रिप्रोडक्शन हर एक ऑर्गेनिज्म नहीं कर सकते रिप्रोडक्शन. तो अगेन, इज दिस अ डिफाइनिंग फीचर और नॉन डिफाइनिंग? Non-defining. नॉन डिफाइनिंग, नॉन डिफाइनिंग. तो But म्यूल ma'am- जैसे एक्सेप्शन. यस Ma'am, like infertile humans, now there is a process of in vitro fertilization. They can reproduce by that process. बच्चे कर सकते हैं, but they'll not be able to, some of them they'll not be able to produce gametes also, है ना. इन विट्रो में भी अगर हम टेस्ट ट्यूब में भी बच्चा लेके आते हैं, टेस्ट ट्यूब में भी, तो स्टिल वी नीड gametes. So these are the organisms, they are sterile. Sterile मतलब होता है they are not able to produce gametes. Okay? Okay, ma'am. तो रिप्रोडक्शन, हाँ, तो अब रिप्रोडक्शन कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म ही शो करते हैं, एंड रिप्रोडक्शन सिर्फ लिविंग शो कर सकते हैं, एंड इट इज द डिफाइनिंग फीचर. ये उनका पूरा पक्का फीचर है, बट नो, इट इज नॉट द डिफाइनिंग फीचर. डेफिनेशन में नहीं इंक्लूड कर सकते. रीजन बीइंग देयर आर सर्टेन पीपल इन ह्यूमन स्पीशीज, जैसे मैंने अभी बताया, इनको बोलते हैं इनफर्टाइल ह्यूमंस. इन केस ऑफ हॉर्स और डोंकी, हॉर्स और डोंकी दोनों को क्रॉस करते हैं, तो आपने देखा होगा म्यूल्स आते हैं, म्यूल्स, खच्चर जिनको बोलते हैं. दे आर यूज्ड फॉर कैरेज पर्पसेस. दे आर स्टेराइल. हॉर्स की तरह वो तेज होते हैं, चलते हैं, और डोंकी की तरह वो सामान भी उठा सकते हैं. तो दे हैव फीचर्स ऑफ बोथ द ऑर्गेनिज्म, बट दे आर इनफर्टाइल, स्टेराइल. तो रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग फीचर. तो इसमें लिखो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या, लिखो पहले. प्रोसेस ऑफ, समझ आ रहा है बच्चों? It is Yes, a, very good. It is a process of formation of, ऐसी चीजें लगती हैं लेकिन होता नहीं है. तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें सबका आंसर यस होगा, बट अब दिमाग लगाना है. एंड बिलीव मी, अगर आप क्लास में अटेंटिव हो ना, आपका दिमाग, मतलब जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, एमसीक्यूज, आई विल शेयर एमसीक्यूज आल्सो बाय नेक्स्ट क्लास. आई विल बी स्टार्ट शेयरिंग एमसीक्यूज आल्सो, आप लोगों को जो अटेम्प्ट करने हैं. तो रिप्रोडक्शन में लिख लो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, process of production of organisms of its own kind. स्टार लगा के लिखो नॉन डिफाइनिंग फीचर. मैं रिपीट करना है एक बार. ओके, लिखो बेटे. प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ इट्स ओन काइंड. रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन लिख रहे हो, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ इट्स ओन काइंड. और ये भी लिखो आप नॉन डिफाइनिंग फीचर. नेक्स्ट लाइन में लिख लेना इनफर्टाइल ह्यूमंस, कॉमा म्यूल. ये दो एग्जांपल्स आ गई. इनफर्टाइल ह्यूमंस, लिखो परीक्षित, आई एम रिपीटिंग, नॉन डिफाइनिंग फीचर, नॉन डिफाइनिंग फीचर. और एग्जांपल्स लिख लो. इसमें एक्सेप्शन क्यों है, क्यों नॉन डिफाइनिंग फीचर है? इनफर्टाइल ह्यूमन, इनफर्टाइल ह्यूमन और म्यूल, MULE, म्यूल. मैम डन. डन. ओके, अब नेक्स्ट फीचर आता है. राइट डाउन द नेक्स्ट फीचर. आई गेस सबको समझ आ रहा है, इजी वे में हम कर रहे हैं. नाउ कमिंग टू अनदर फीचर, दैट इज रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. कितने बच्चों ने टच मी नॉट प्लांट को देखा है?
टू इमेजेस को बोलते हैं टच मी नॉट. Only two students have raised their hand, Dipanshu and Avit. Yes, what about others? Touch me not. I have. Okay, okay. बेटे I have asked कि किसने देखा हुआ है touch me not plant को. उसको टच करते ही उसकी जो लीव्स हैं वो बंद हो जाती हैं. Okay, I'll share pictures. बेटे I'll be forming group maybe by next class. So I'll be sharing beautiful pictures I have, beautiful videos I have. I'll keep on sharing interesting facts. उसमें जिसमें आप आई थिंक कुछ बच्चों ने देखी भी हैं वो वीनस फ्लाई ट्रैप, कैसे वो इंसेक्ट को गल्प करते हैं, कैसे उसका एसिड उसको खाता है, कैसे पर्ल्स निकलते हैं. ब्यूटीफुल पिक्चर्स, ब्यूटीफुल वीडियोस रिलेटेड टू साइंस. उसमें आप देखोगे टच मी नॉट कैसे वो बंद हो जाता है जैसे ही आप छूते हो, क्योंकि उसका पानी नीचे रूट्स में चला जाता है. अब कहा गया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर कोई इंसान या कोई चीज जिंदा है तो वो रिस्पॉन्स करेगी अगर आप उसको टच करोगे या उसको बुलाओगे. हाउ मेनी ऑफ यू आर एग्रीड टू दिस स्टेटमेंट? यस, लिविंग थिंग्स कैन रिस्पॉन्ड, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट. कहते हैं जिंदा है तभी आप रिस्पॉन्स कर पाओगे, नॉन लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्स नहीं करती. नो वन? ओके, दीपांशु, निधि सेज यस. किरणप्रीत, कशिश, Yes, ma'am. हिमांशु, ओके, सुखमन. Raise your hand. Aditya, okay. Yes, Anvi. Panisha says yes. Sukhman says yes. Yes, Himanshi, I'm waiting, bete. Navreet, Soumya, Tanvi says no reply from Tanvi. Yes, Soumya, I'm waiting, bete. Himanshi, I'm waiting. Okay, got it. Okay, so almost everyone. Okay, Prikshit is also saying yes. मुझे इसमें अब आप लोगों ने बोला कि अगर जिंदा है, सपोज आई एम सिटिंग इन अ रूम और मैं पढ़ रही हूँ और पीछे जो कर्टन है एकदम हिला, तो आपने नॉर्मली देखा होगा कि आप एकदम डर जाते हो जब आप कर्टन हिला है. दैट इज अ नॉन लिविंग थिंग. तो मुझे लगा कि वहां कोई आया है, कोई ऑर्गेनिज्म आया है या कोई चूहा निकल के गया है, कुछ भी ऐसा. तो इज दिस अ साइन ऑफ लिविंग? कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स? इज दिस अ Ma'am, डिफाइनिंग? लाइक जैसे माउंटेन वाले में एक्सेप्शन, मतलब जो आपने बताया था, तो उस वे से तो इसमें भी हो सकता है मैम ये वाला फैक्टर. यस, यस, इसमें भी एक एक्सेप्शन है. इवन इन ह्यूमन आल्सो, व्हेन वी आर इन अ स्टेट ऑफ कॉमा, गॉड फॉरगिव, बट व्हेन वी आर इन अ स्टेट ऑफ कॉमा, यू नो, कॉमा स्टेज हो जाती है जिसमें देयर इज नो मूवमेंट विद इन द बॉडी पार्ट, नो रिफ्लेक्सेस एट ऑल. ब्रेन इज डेड. ब्रेन डेड है, बाकी सब ऑर्गन्स चल रहे हैं. जस्ट इमेजिन द स्टेट ऑफ दैट पर्सन. कहते हैं वेजिटेबल की तरह हो जाता है वो इंसान. ब्रेन इज डेड बट ऑल द ऑर्गन्स आर वर्किंग. यूरिन बन रहा है, खाना पच रहा है, ब्लड चल रहा है, हार्ट चल रहा है, किडनीज चल रही हैं, बट ब्रेन नहीं चल रहा. ब्रेन आगे हाथ पांव नहीं, कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा. व्हेन वी आर इन द स्टेट ऑफ कॉमा, विल वी बी एबल टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई? यस और नो? No. No. No, ma'am. तो इसमें लिखो, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई में लिखो. रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई मतलब होता है अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग. awareness of surrounding. But in state of coma also, our organs are still moving, our heart is beating, pumping, दिल चल रहा है. क्योंकि कभी भी आपने देखा है किसी की भी डेथ होती है, अगेन गॉड फॉरगिव, तो आप लोग क्या चेक करते हो? हार्ट बीट. ब्रेन डेड है, इंसान डेड नहीं होता. हार्ट डेड है, इंसान डेड होता है. ब्रेन तब भी चल रहा होगा अगर आपका दिल बंद हो गया. इसीलिए इसको हमने, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई को हमने डिफाइनिंग फीचर में गिना है, क्योंकि योर अदर ऑर्गन्स आर पंपिंग और वर्किंग. तो अब लिखो इसमें, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई में लिखा आपने अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग. एक्सेप्शन लिख लो, इन कोमा स्टेट.
but consciousness अगर कोई कोमा से लेट उल्टा वापस आता है, उस स्टेट से वापस आता है, या फिर आपने देखा होगा कि वो जब बॉडी रिस्पॉन्ड करना शुरू करती है तो आई बॉल्स मूव करती हैं, या धीरे धीरे बॉडी जो है मूवमेंट में आना शुरू होती है, तो उसको हम बोलते हैं स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस या फिर रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, वन एंड द सेम थिंग। नेक्स्ट लाइन में लिख रहे हो, कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग फीचर। जब आप एमसीक्यूज करोगे तब आपको समझ आना शुरू हो जाएगा हम क्या पढ़ रहे हैं। कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग फीचर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। डन विद द पॉइंट्स? यस एवरीवन? Yes, ma'am. ओके ओके, वेरी गुड। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट आप लिखोगे सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? बॉडी बनी हुई है सेल से, सेल्स कंबाइन टू फॉर्म टिश्यूज, टिश्यूज फॉर्म ऑर्गन, ऑर्गन फॉर्म ऑर्गन सिस्टम फॉर्म organism, and this is same in all the organisms. तो लिखो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन इज द नेक्स्ट लाइन में लिखना डिफाइनिंग फीचर of all the organisms, defining feature of all the organisms. पता नहीं। मुझे mute yourself, Parikshit. So these are the features of living organism: growth, respond to stimuli, reproduction, metabolism, or cellular organization. Clear? So now I'm coming to another topic. I hope यहाँ तक सभी को clear हो चुका है. I'll make you write down question answers in the next class. अभी सिर्फ आप समझ रहे हो. Okay, now next topic is nomenclature. इसी में दिया हुआ है what do you mean by nomenclature? Any idea about nomenclature? Yes, Parikshit, आप try करो बेटे. Anyone? Nomenclature is? Anyone from girl side? Ma'am, naming of organisms. Yes, naming of organisms on the basis of scientific rules which were given by ICBN or ICZN या ZN. तो ये इनके rules के according हम चलेंगे. ICBN, they have given certain rules for naming organisms. ICBN की full form है International Council of Botanical Nomenclature, International Council of Zoological Nomenclature. और इनके लिए rules बने हुए हैं. Every organism will have two names. All the organisms will have two names. First name will be generic name. अभी interesting topic आने वाला है. And second name will be species name. सब organisms के दो नाम होंगे. First name will be generic name. Second name will be species name. And this binomial, this bi means two. This binomial nomenclature was given by anyone? Binomial system was given by a scientist जिसका नाम था Carolus Linnaeus. Yes. अब इंटरेस्टिंग बात जरा सुनना इसके बारे में. हम थोड़ी थोड़ी स्टोरीज पढ़ेंगे हर एक के बारे में. तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस साइंटिस्ट कार्लस लीनियस. बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है. इसका खुद का नाम था कार्ल वॉन लीनियस. और अभी इसने आपने देखा कि इसने बोला हर ऑर्गेनिज्म के दो नाम होने चाहिए. इसने पहले अपने आप से शुरुआत की. He changed his name into two names, Carolus Linnaeus. अब इसका नाम कार्लस लीनियस है. पहले इसका नाम था कार्ल वॉन लीनियस. He changed his name
by using this rules of two naming organism with two system, उसने अपना नाम ही Carolus Linnaeus किया, क्योंकि he was the first one who used this system. He is known as father of binomial nomenclature. इसका नाम बहुत जगह आएगा आप लोगों को, तो इसमें सबसे पहला अगर क्वेश्चन आता है, who is the father of binomial nomenclature, it is Carolus Linnaeus और Carl von Linnaeus. इसके लिए कुछ रूल्स थे, जैसे मैंगो का नाम दिया इसने, फर्स्ट नाम है मैंजिफेरा और दूसरा नाम रिप्रेजेंट करता है इंडिका. एज यू कैन सी इंडिका, इंडिया इज अ कंट्री, और कंट्री का नाम कभी हम स्मॉल्स में नहीं लिखते, बट इसने ये रूल बना दिया कि चाहे कंट्री हो चाहे कुछ भी हो, उसका नाम हम स्मॉल्स में, फर्स्ट नेम जो जेनरिक का है वो कैपिटल होगा, फर्स्ट नेम जो स्पीशीज का है वो स्मॉल होगा. दिस इज द फर्स्ट रूल. पहला आप रूल पढ़ चुके हो, एवरी ऑर्गेनिज्म विल हैव टू नेम्स. जो सेकेंड नेम है विल रिप्रेजेंट इट्स ओरिजिन, कहां से ओरिजिनेट हुआ है. इसका मतलब आप देख सकते हो मैंजिफेरा इंडिका कहाँ का ओरिजिन है, इंडिया. मैम इंडिया. यस यस. अब कॉफी की बात करें, ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो आप लोगों को पता चल जाएंगी. इसको बोलते हैं कैफिया अरेबिका. तो ये कहाँ की ओरिजिन हो गई, अरब. अरब. मैं कभी यस यस. तो ये यूज किया उसने सिस्टम, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर. अब दो नेम तो दिए, बट लैंग्वेज कौन सी यूज की, ही यूज्ड लैटिन लैंग्वेज. लैटिन लैंग्वेज एक लैंग्वेज है विच इज अ डेड लैंग्वेज. अब डेड लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ, ऐसा नहीं कि लैंग्वेज मर चुकी है. तो लैटिन लैंग्वेज का मतलब डेड लैंग्वेज है. डेड लैंग्वेज का मतलब है विच इज नो मोर इन यूज. लैटिन अमेरिकन लैंग्वेज थी विच इज नो मोर इन यूज. जैसे अब आप नॉर्मली आपने देखा होगा अपने फ्रेंड्स में कोई शुरू करते हैं कोई टॉपिक, जैसे LOL था, किसने शुरू किया है और कब खत्म हो गया पता ही नहीं. अभी रिसेंट कुछ चल रहा है ऐसा कुछ, आप लोग टाइपिंग में लैंग्वेज में कुछ OMG जैसे हो गया, मतलब किसने शुरू किए वर्ड्स और कहाँ कहाँ से ओरिजिन हुआ है और कब खत्म हो गए, ऐसी लैंग्वेज को हम बोल देते हैं डेड लैंग्वेज. तो लैटिन वाज डेड लैंग्वेज. ही यूज्ड दिस लैंग्वेज फॉर नेमिंग ऑर्गेनिजम्स. लेकिन जब लिखने, ये तो यूज की उसने बोलने वाली लैंग्वेज, लेकिन जब रिटन लैंग्वेज की बात हुई, ही यूज्ड इटालियन लैंग्वेज इटैलिक्स में. व्हाई इटैलिक्स, अगेन एन इंटरेस्टिंग फैक्ट. सब साइंटिस्ट आए, इंडियन साइंटिस्ट भी रहे, उन्होंने भी अपनी लैंग्वेज दी. संस्कृत, इंग्लिश में भी हुए, चाइनीज में भी आए, जापानीज में भी आए, लेकिन एक लैंग्वेज ऐसी थी जो इटालियन लैंग्वेज थी, जब उसको लिखते हैं तो वो टेढ़ी लिखी जाती है. सपोज लाइक दिस. बाकी सब हम सीधा लिखते हैं. तो अगर कुछ ऐसी चीज टेढ़ी लिखी हुई है, यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज इट्स अ साइंटिफिक नेम. आप खुद बता दोगे इट्स अ साइंटिफिक नेम बिकॉज इट इज रिटन इन इटैलिक्स. यूज दिस italic Italian language while writing because it is written when it is handwritten, it is in different font. और जीनस नेम मैंने आपको बता दिया है, जीनस नेम शुड बी रिटन कैपिटल और स्मॉल. कैपिटल, whereas species Capital. name, Species yes, name species small letter. इसी तरह कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, I'll make you write down. इसी तरह कुछ और एग्जांपल्स हैं. सपोज आज कशिश ने बोला मम्मा मुझे आलू के परांठे खाने हैं. तो आलू जो है, यू विल नॉट यूज द कॉमन वर्ड्स नाउ. आलू के लिए हम यूज करेंगे सोलनम ट्यूबरोसम. दिस इज अ साइंटिफिक नेम, क्योंकि अभी बताया मैंने आपको हर ऑर्गेनिज्म के कितने नाम होंगे, दो. पहला जेनरिक, दूसरा स्पीशीज. दिस इज अ नेम फॉर पोटैटो. धीरे धीरे आप लोगों को लर्न होंगे, अभी स्ट्रेस मत होना. पोटैटो. और इसने बोला मुझे मम्मी प्याज भी डालना है उसमें, एलियम सेपा, अनियन.
एलियम सेपा। मैंगो का क्या बताया था मैंने? एनीवन? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो? Mangifera indica. Mangifera indica. शाबाश। तो ये सबका फेवरेट है एंड आजकल सीजन भी है, सब खा भी रहे होगे मैंजिफेरा इंडिका। और बनाना भी सभी का फेवरेट होता है, अगेन अ फ्रूट। इसको बोलते हैं म्यूसा पैराडिसिका। अभी आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ 3-4 हमारी एनसीईआरटी में जो दिए हुए हैं वो याद कर लो। ह्यूमन का दिया हुआ है, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है होमो, Sapiens. वेरी गुड, होमोसेपियंस। ये थे जो होमोसेपियंस हमारे एंसेस्टर्स थे। अब जो है हम लोग और एडवांस हो गए हैं। अब आपने देखा हमारी कंप्यूटर में ज्यादा, मतलब हम लोग जो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा आजकल कॉमन आ गई है, तो वो इसके लिए अब हमें और एडवांस बनाया गया, होमो सेपियंस सेपियंस। तो अब ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर आ चुकी है। देयर आर मोर देन 3 अल्फाबेट्स, आई एम रिपीटिंग। हमारा चलता था बाइनोमियल, लेकिन अब हम और एडवांस हैं तो हमें चेंज किया गया। थर्ड नेम इज जनरली सेम एज द सेकेंड नेम, और ऐसी चीज को हम बोलते हैं रिटोनिम। रिटोनिम इज when third name subspecies name is same as second name, repeated। अब हम जो है होमो सेपियन सेपियन। ऐसी एक और एग्जांपल रोटोनिम की, फोटोनिम, PAUTONYM। ऐसी एक और एग्जांपल है, गोरिल्ला का साइंटिफिक नेम है गोरिल्ला, 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 अगेन फोटोनिम। How many of you are clear with this topic? Please raise your hand if it is clear. Okay. Yes, Aditya, Anvi, Himanshi, Navreet, Soumya. Okay, got it, got it. So please write down this topic now. Heading लिख लो. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, the scientific name of gorilla is gorilla, gorilla, gorilla. Yes, yes, yes. Okay. Okay, ma'am. हाँ, बस first इसमें capital आएगा, generic में बाकी सब same. So I'll give you a few examples जो आप याद आएंगे, तो I'll make you learn these scientific names only. Please write down the heading binomial. Write down the heading binomial system of nomenclature. Binomial system of nomenclature. It is a system where Ma'am, can you repeat the heading that you have said? okay, binomial system. Binomial system of nomenclature. Binomial system of nomenclature. Binomial system में लिखो, it is a system where an organism is represented by two names. Ma'am, please can you repeat? Yes, it is a system where organism is represented by two names. Organism is represented by two names. First, generic name, and second is specific name या species name. First is generic name and second is species or specific name.
Ma'am, what is the full form of ICBN and ICGN? Yes, write down. नीचे लिख लो, उसी में आपने लिख लिया. First is generic name and second specific. Write down the full form of ICBN, International Code of Botanical Nomenclature. Ma'am, international Code of International Code of Botanical Nomenclature. और ICGN के भी लिख लो. ये बोटानिकल फॉर प्लांट्स होगा, वो zoological है फॉर एनिमल्स. इंटरनेशनल कोड ऑफ zoological nomenclature. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, you have said na, first is generic name and second is Species or specific. ये रहा. Look on your screen. I've written. Second is species या specific name. कौन सी लैंग्वेज यूज की थी? Anyone? Latin. I'm Latin. Latin. Or when it is handwritten, it is in Italian. 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 italics. Yes, write down. Rules for naming organism लिखो heading. Rules for naming organism. A scientific name is represented by a scientific name is represented by two names. A scientific name is represented by two names. Scientific name is represented by two names in Latin. A scientific name is represented by two names in Latin. Next point. Names are printed in italics. अब मैंने जब आपने लिखा, मैंने नाम लिखा मैंजीफेरा इंडिका. सौम्या देखो आपने, मैंने अगर नाम लिखा है मैंजीफेरा इंडिका, तो मुझे टेढ़ा लिखने के लिए बहुत मुश्किल हुआ. तो मैंने क्या किया है, मुझे अपनी लैंग्वेज में अपने अपने फॉन्ट में लिखना मैंजीफेरा इंडिका. व्हेन इट इज हैंड रिटन, ये टाइप में फॉन्ट आएगा. जब आप टाइप कर रहे हो, बुक में टाइप कर रहे हो, कंप्यूटर में टाइप कर रहे हो, व्हेनेवर यू आर टाइपिंग, तो आप फॉन्ट यूज करोगे इटालियन. लेकिन जब मैंने हैंड रिटन लिखना है, then they should be underlined separately. That means it is in italics. Single line नहीं लगानी, they should be separately underlined. इसका मतलब हो गया कि they are written in italics. Again, अगर मैंने बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ है और उसमें कुछ दो वर्ड्स हैं अंडरलाइन किए हुए हैं, you can easily say that these are scientific names. I hope ये पॉइंट भी सबको क्लियर है कि when handwritten, तो आप लिख रहे हो ये सेकंड पॉइंट, names are printed in italics or separately underlined. Or separately underlined. You can see from your screen, I have underlined them separately, all of them. Okay, I cannot write them in bent form. टेढ़ा लिखना मुश्किल है. So what I have done is I have underlined them separately. Names are printed in italics or separately underlined. Next point, देखो. Generic name starts with capital letter. Generic name starts with capital letter. And species name starts with
जेनरिक नेम स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर एंड स्पीशीज नेम या स्पेसिफिक, एक ही बात होगी, चाहे आप स्पेसिफिक कह दो चाहे स्पीशीज कह दो, स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर. मैंजिफेरा इंडिका. अब अगर मैंने जिस साइंटिस्ट ने इसका नाम रखा है उसका नाम भी मैंने लिखना है, और ये लीनियस ने दिया है नाम इसका, तो लीनियस के लिए मैंने क्या किया, इसमें पूरा नाम नहीं लिखा, लिन लिख दिया. लिन LINN, बिकॉज इसका नाम था LINNAEUS, तो मैंने सिंपल 2-3 इनिशियल्स ले लिए, 4 इनिशियल्स लिए और उसको इटैलिक्स नहीं किया. दैट मीन्स आई हैव नॉट अंडरलाइंड इट. This Lin represents the name of the scientist. Next point लिखो. क्या ये point clear है सभी को? We can add the name of scientist after generic or species name. लिखो, the name of author is written. Next class में we'll be studying about Linnaeus. बहुत कुछ किया इसने. Importance of writing the like the name of the organism, sorry, the name of that particular thing along with the name of the scientist. But अगर ये देखो, suppose this is named after me, I have given the scientific name to this particular organism. बड़ी interesting बात आपने पूछी है. Who is it? Who is this? Ma'am, Sukhman. हाँ, Sukhman. Suppose Sukhman wants to have mango and she has gone to China. वहां पे she has asked for mango. They'll not give her mango at all, even if she tries to show them a picture. Suppose she wants to have ladyfinger, भिंडी खानी है उसने. मैंगो तो फिर चलो आप बना के बता दोगे कि मीठा है या कुछ है. Let's say she wants to have ladyfinger and she has gone to China or Japan and she is asking for ladyfinger. उनको कुछ नहीं समझ आ रहा क्योंकि they have n number of things, there are n number of varieties of food related to. अगर वो फिंगर को भी ऐसे मूव करके मतलब अपना कोशिश भी करेंगे बनाने की, तो तब हमने क्या किया, साइंटिफिक नेम्स दिए. इफ शी आस्क फॉर दिस ओकरा, साइंटिफिक नेम ऑफ भिंडी, लेडी फिंगर, नाउ शी विल गेट ओकरा एवरीवेयर एंड यू विल बी अमेज्ड. बहुत सारे होटल्स में, चंडीगढ़ में भी अगर आप मेन्यू उठाते हो, वहां के मेन्यू में भी लिखा होता है कि ये डिश जो है ओकरा है, इसके अंदर ओकरा स्पेशल, ओकरा अनियन स्पेशल. तो लगता है पता नहीं क्या आ जाएगा ओकरा, कोई सोचता है पता नहीं क्रैब आ जाएगा, पता नहीं क्या आएगा, एंड यू विल गेट अ भिंडी फ्राइड वन विद अनियन स्लाइसेस. तो ओकरा, यू विल फाइंड दैट they have used this word okra. So this is the significance of using the scientific names, that they are universal. कहीं पे भी जाओगे, you will ask for this okra, you will get it. Mangifera indica बोलोगे, you will get the mango, because mango is, yes. But ma'am, there should be binomial nomenclature rule, ma'am, but it's a single name. They should be banned. I am No, not getting it. Ma'am, I am trying to say, ma'am, the rule should be used as binomial nomenclature, but ma'am, there's a single name given. Single name given, yes. नहीं, this single name is used everywhere. अब प्याज आपने खाना है, एलियम सेपा बोलोगे, you will be given एलियम सेपा. Everywhere around the world you will be given. एलियम means onion. So they have tried to give a single name for an organism so that it will be easy for her, because we have different languages, n number of languages are there. And यहाँ पे आम बोल रहे हो, कुछ और कहीं यूज करते हो. अब आप भिंडी को कुछ, जैसे आपने वो देखा है, मक्की है, छल्ली है, भुट्टा है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं हर जगह. You have n number of names for the same organism and you will not be able to get it if you want to have it. So this is the significance कि they are universally accepted names. और Linnaeus ने तो इतना काम किया है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे. इसने इतनी बुक्स लिखी हैं. इसने अपने टाइम में, जब कोई भी लैब्स नहीं थी, तब उसने 10,000 प्लांट्स को नाम दिया था. 10,000 प्लांट्स. वाओ, इसको तो ऑनर करना बनता है ना, क्योंकि देखो इसने नाम के आगे, अगर मैंने लिख भी दिया मैंजिफेरा इंडिका के आगे लीनियस, तो इसने n नंबर ऑफ प्लांट्स को, एनिमल्स को, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को नाम दिए हैं इसने, साइंटिफिक नेम. तो he has done that effort when the facilities were not there. तो Linnaeus, that is why he is known as father of
क्लासिफिकेशन सिस्टम, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, लीनियर्स के बारे में इन द नेक्स्ट क्लास. आई एम नॉट गोइंग डीप इनटू दैट. तो इसमें अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो. द नेम ऑफ ऑथर इज रिटन इन. क्या मैंने पूरा नाम लिखा है इसका? यस फनीशा? नो, आई हैव यूज्ड द एब्रीवेशन. एब्रीवेशन यू नो, शॉर्ट फॉर्म. तो लिखो इसमें, द नेम ऑफ ऑथर इज रिटन the name of author is written in abbreviated ABBREVIATED, abbreviated ABBREVIATED, abbreviated form after species name. I'm giving you few examples for next class. आप लोग learn करोगे इनके नाम. मैंगो का आपको बता दिए हैं. मैन का मैंने क्या बताया था? Yes. Homo sapiens, sapiens. Homo sapiens. Yes, Homo sapiens is also correct. Homo sapiens sapiens is also correct. House fly. आजकल बड़ी कॉमन हुई हुई है हाउस फ्लाई. मक्खियां आनी शुरू हो गई हैं. इनका नाम है मस्का डोमेस्टिका. मुश्किल है थोड़ा थोड़ा, लेकिन जब पढ़ना शुरू करोगे तो देन यू विल गोना एंजॉय. मस्का डोमेस्टिका. वीट, कनक. कनक का आटा देखते हो ना, जो आप रोटी खाते हो जिसकी, वीट. उसका साइंटिफिक नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम. ट्रिटिकम एस्टिवम. मैंगो का मैंने लिखवा दिया आपको, मैंजिफेरा इंडिका. रोज का क्या होगा? एनीवन? रोजा इंडिका. आधी से ज्यादा स्पीशीज तो इंडिया की है, इतना अच्छा फेवरेबल क्लाइमेट है. रोजा इंडिका, सबसे सुंदर फ्लावर रोज. How many of you are clear till this topic? Yes, raise your hand. Okay, Tanveer, very good. Tanveer is back. Okay, Soumya, ठीक है. Fanisha, Aditya, Dipanshu. Yes, Anvi. Anvi, Atri. You are only left, बच्चे. Anvi. Anvi, is this clear, bete? Please unmute yourself. Anvi, am I clear? Am I audible? You were the first one to introduce. Anvi, just raise your hand, bete, if it is clear. So I'm just quickly revising what we have done till now. तो हमने living organisms में पढ़ा था growth का factor, which is not a defining feature. Metabolism, देख सकते हो लिखा हुआ है, it is a defining feature. Third was reproduction, again a non-defining feature. Respond to stimuli or consciousness, which is a defining feature. हमने 5 features पढ़े थे. Next, cellular organism, it is again a defining feature. दिखा था सबने ये? Yes, ma'am. Yes, yes. NCERT में जब आप पहले 2 pages देखोगे तो उसमें यही सब दिया हुआ है. You have to read from NCERT also. I have just started with this basic topic, which is nomenclature, giving scientific names. It is according to certain rules which were described by ICBN, International Code of Botanical Nomenclature. Botany matlab plants. International Code of Zoological Nomenclature. Zoology means animals. We give 2 names to organism, generic and specific. This system was given by Carl von Linnaeus. उसने अपने नाम को बदल दिया था पहले, Carlus Linnaeus. Carlus Linnaeus. And सबसे पहले हमने जो एग्जाम्पल पढ़ी वो थी
मैंजीफेरा इंडिका. मैंजीफेरा इंडिका मैंगो का साइंटिफिक नेम है, मैंजीफेरा इंडिका. और बायनोमियल नॉमेनक्लेचर जो आपने पढ़ा था, ICBN और ICZN, इनके बारे में, इनके इनके अगर आप रूल्स की बात कर रहे हो तो रूल्स में जो मैंने आपको अभी लिखवाए हैं, लैंग्वेज कौन सी थी, लैटिन. इफ दे आर हैंड रिटन, उनकी जो लिखने की लैंग्वेज की फॉन्ट है दैट इज इटैलिक्स. इफ दे आर हैंड रिटन दे शुड बी सेपरेटली अंडरलाइन. फर्स्ट नेम represent genus, second name represents species. Generic name first letter should be capital, species name first letter should be small, and the author name is to be written in the end, and it is non italics. I hope I am clear with everyone, and I have given you few examples also. Yes, ma'am. Okay, Yes, so ma'am. yes, we'll continue with the topic in the next class because there are a few more students who are going to join from the next class. So I hope you all enjoyed this class. Even I enjoyed with your company. You all are very intelligent. Ma'am, can you tell your name? I'm Dr. Mehak Bete. I'm Dr.